All right. We actually have already about 30 plus attendees. We have 50 plus registrations, so hopefully people will join as they can. But without delaying, hi everyone. Thank you so much for joining for this session. We do have a last minute speaker change. Sujit Grover had an emergency at the last minute, but Center for Science and Environment was kind enough to give us access to Mitashi Singh, who is also a program manager at the Sustainable Habitat program at CSC. Um, she has been associated with CSC for more than 7 years. And if any of you have read any of the construction and demolition reports that CSC has released, she seems to be very critically a part of those reports. Mitashi has a background in urban planning and policy design. So this session actually has been at least on our minds for a while as well. We, I mean, we, at ASAR as well as through our partners, we've sort of come to realize that, of course, air quality is an extremely complicated issue with many sources and many, auxiliary issues attached to it. But construction and demolition definitely plays a huge role in, specifically when, you're dealing with urban local bodies and cities. So we do hope to learn a bit about how these two are interconnected, construction processes as well as the waste management processes. And of course, also to understand, if we were to sort of engage on these issues at a city level, what does an ideal CND process, what should it look like, right? So we're hoping to learn a bit on those lines. If you are ready, Mitashi, it's over to you. Thanks so much. Thank you, Natasha. I'll share my screen. Just give me a minute. Can you see my presentation? Yes. Yeah. Okay. Let me switch off my video because the bandwidth seems to be a little less. All right. So what I'll do in this short session is I'll update everybody on what are the legal requirements when it comes to C&D waste management, and also what kind of dust control practices are required. And that also are there because of Environment Protection Amendment rules that came out in 2018. So I'll try to give a mix of, what is happening in cities with regard to these two rules and what more needs to be done. So starting off with Yeah, starting off with the latest program that is also a very landmark move made by the Ministry of Environment, Forest, Climate Change. This happened in year 2019, in which we realized the need for a mission to clean our urban air because India did not have any standards for air quality. India only had its own standards for air quality in 2017 when the national ambient air quality standards were notified. In Under those standards, there are so many pollutants listed out, but major 8 pollutants are there which decide the air quality index
in our country. So air quality index is a matrix that you can see on the screen. There are categories in it. When the air quality index hits a value of 201 and above, it starts causing breathing discomfort to people who are vulnerable. It start creating problems for people who have high exposure to polluted air. And in worst case scenarios, for example, in Delhi, we also have emergency action scenario where AQI crosses 500. You see here that the severe category ends at 500, but we do have air quality index going beyond 500, which is a very big problem for our city. These are some of the pollutants that I was talking about, but only 8 key pollutants are the ones that are considered by the AQI until number 8, that is ammonia. But of those very toxic, often not considered toxic, but is very toxic, is the PM 2.5 particle. You can see how small it is. So this is a strand of a human hair, which is enlarged. And here you see PM10 particles, and you can also see the PM 2.5 particles. So now when this 2.5 PM particle is covered in toxic pollutants, and when it goes into a human bloodstream, it stays there. It does not come out. It sits in the lungs of the people who inhale it, and that is where the problems become worse. So we have pledged that by 2026 we have to reduce the particulate pollution by 40%, when the baseline is 2017 levels, when the air quality standards came in. So we have to reduce particulate pollution or PM10 pollution by 2026. Earlier, the deadline was 2024, but we realized we need more time to achieve this goal. So this is the revised year. And since then, there is a lot of action that has taken place in the country. There are some 131 cities that do not meet the air quality standard, meaning who have bad air, and they have to take a whole set of measures across different sectors to improve their air quality. These are also called non-attainment cities. You will see this term in the newspapers every now and then. So there are 131 non-attainment cities these days. Uh, Now, why I'm talking about this program is because this is a very active program, and it has 7 thematic areas. And road dust and construction and demolition waste is one of those 7 thematic areas. Now, the government, what it's doing is, all these 131 non-attainment cities have to prepare their city clean air action plan. They are making their state clean air action plan. They also have something called a micro clean air action plan, in which they have to plan measures. For example, I will set up a C&D waste processing plant. Or let's say I will roll out a checklist for dust control at construction sites, and I will implement it. So now, until when the ULB is going to implement it, what will be financial liabilities, what will be institutional liabilities, and what kind of other resources would be required by the ULB are all captured in the micro action plan. All these plans are available on this portal that the government is using for monitoring progress under National Clean Air Program. The portal is called Prana, that is portal for regulation of air pollution in non-attainment cities. So you can easily hover around your city, over your city, and you can see what all sort of plans the city has already submitted, and what is the precise action the city is taking under these thematic areas. Now, many of you might think that road dust and C&D waste is not really, a big contributor. ये तो झूठ है, and this is a very small contributor perhaps. तो इसको इतना importance क्यों दिया है? So here you will see this is from the source apportionment study of Delhi that was conducted by Terry and ARAI. You will see how dust and construction is responsible for over 40% of PM10 dispersion.
And let me tell you that in cities such as Chennai, dust in construction is responsible for more than 85% of PM10 particulate in the air. So, this is something that is not to be taken lightly. And if I have to tell you, in cities largely, I mean, there's definitely seasonal variation, there's definitely other climatological factors. But largely, you can say that, there are three key contributors to bad air quality. One is dust in construction, the other is vehicles, and the third is industry. These three have almost an equal proportion of contribution to bad air quality. Now, not just this, this was the air pollution or a public health emergency aspect due to which or because of which we are talking about C&D waste and dust management. But another problem is that India is yet to develop. India is a nation that is developing very rapidly, and do you know that we are yet to develop more than 50% of our infrastructure that is needed for 2030. So this means tremendous level of construction is happening in the country and will happen, which means that we are going to extract enormous amounts of resources. We already have a very high resource extraction as compared to the rest of the world that has already developed. Hence, we have a very, very high material demand. Then we also have huge amounts of waste that are coming out of those processes, and the bad news is that we have a very low recycling rate. In fact, latest CSE research found out that our recycling rate, even after operationalization of 30 plus C&D waste plants, we are recycling less than 10% of the C&D waste that is getting generated. Not just this, when this waste stream is not managed properly, what it does is it just severs our environment. It chokes our water bodies, it destroys wetlands, uh, it enables encroachment, it promotes encroachment, it pollutes water when there are hazardous materials in this waste, and so on. It destroys vegetation and so on. Not just this, when it's disposed of at roadside, it hinders vehicular movement, rendering it unsafe. It also hampers pedestrian movement, and it causes a lot of unsafe scenarios. So, keeping all this in mind, C&D waste management rules were launched in 2016. 2016 was a very important year in the country because in this rule, we for the first time recognized construction and demolition waste as a separate fraction from the municipal solid waste. Before this, C&D waste was getting handled along with municipal solid waste. And only after this, we started thinking about this waste stream. So we can call this the newest waste stream of the country. There is one thing to keep in mind. If there is a hazardous material mixed with C&D waste, for example, asbestos, if asbestos is mixed with C&D waste, the waste turns hazardous and it has to be dealt with as per hazardous waste rules. That also came out in 2016. Another landmark decision was before 2016, IS Code 383 allowed only for natural materials or virgin materials extracted naturally to be used in all construction. So, realizing this policy barrier, the Bureau of Indian Standards um, amended this code, and they allowed use of recycled coarse aggregates and recycled aggregates in construction processes. Now, to give you a quick overview of what are the duties of a waste generator. First of all, when the rules came out, what the rules did was uh, they see पहले क्या होता था वेस्ट मैनेजमेंट लोकल बॉडीज का हेडेक होता था
एंड जो जनरेट कर रहा है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था. सो बट सिंस द रूल्स केम इन, एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया दैट वेस्ट को मैनेज करना जनरेटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई. सो सिंस देन waste generators are required to submit a waste management plan. जब आप लोग बिल्डिंग परमिशन लेते हैं, आप जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में नक्शा पास कराना बोलते हैं, तो जब नक्शा पास कराया जाता है म्यूनिसिपैलिटी से, उसी ड्यूरेशन में अब हमको एक वेस्ट मैनेजमेंट प्लान सबमिट करना पड़ेगा. इन दिस वेस्ट मैनेजमेंट प्लान, व्हाट ऑल शुड यू हैव? यू शुड हैव आपका साइट का डिटेल्स, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे साइट में कहाँ पर मटेरियल रखा जाएगा, कहाँ पर सीएनडी वेस्ट रखा जाएगा, सर्कुलेशन रूट क्या होगा, और उस सीएनडी वेस्ट को हम सेग्रीगेटेड मैनर में कैसे रखेंगे, क्योंकि रूल्स कहते हैं कि आपको 4 से 5 स्ट्रीम्स में सीएनडी वेस्ट को सेग्रीगेट करके रखना है. एंड सीएनडी वेस्ट सॉलिड वेस्ट के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो दिस विल अट्रैक्ट पेनल्टीज एंड फाइन. सो ये सब चीज़ें, ये सब बातें, हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज सीएनडी वेस्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, ऑल दिस हैज़ टू रिफ्लेक्ट इन द वेस्ट मैनेजमेंट प्लान. तो ये वेस्ट मैनेजमेंट प्लान नक्शा पास कराने के समय अथॉरिटीज़ को सबमिट करा जाएगा. एंड उसके बेसिस पे अथॉरिटी आपको बिल्डिंग परमिशन देगी. बहुत सारे शहरों में इसी स्टेज पे एक यूजर चार्ज या सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग फी भी कलेक्ट करी जा रही है, बिकॉज सीएनडी वेस्ट रूल्स में एक क्लॉज है दैट वेस्ट जनरेटर्स विल हैव टू पे अ फी टू प्रोसेस सीएनडी वेस्ट. बिकॉज देखिए, अब सीएनडी वेस्ट प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले तो हमको इसे वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, इसको रिसोर्स बोलना चाहिए. बिकॉज ये सीएनडी वेस्ट एक इस तरीके का वेस्ट है जो नॉक्शियस नहीं है. नॉक्शियस मतलब इसमें, इससे किसी और को बहुत ज़्यादा कठिनाई या परेशानी नहीं होती है अनलेस ये मिसहैंडल हो रहा है, डस्ट निकल रहा है या फिर ये वाटर बॉडी के पास जा रहा है. अदर देन दैट, इस वेस्ट से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है. डज नॉट स्मेल. सो एंड इट डज नॉट इमिडिएटली कॉज एनी हजार्डस रिएक्शन टू द पीपल. तो क्या होता है, अ, इस वेस्ट को हम लोगों को प्रोसेस करने के लिए दिमाग में रखे. इसको वेस्ट नहीं बोलना चाहिए, ये एक्चुअली एक रिसोर्स ही है. डू यू नो दैट सीएनडी वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 90%? 90% तक हम रिसाइकल्ड सीएनडी वेस्ट को अपने कंस्ट्रक्शंस में यूज कर सकते हैं. कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलियन सिटीज हैं, स्टेट्स हैं, दैट आर यूजिंग सीएनडी वेस्ट इन देयर कंस्ट्रक्शन बाय 90% 100% तक भी जाने की बातचीत चल रही है. सो हमारे रूल्स में 20% का इस्तेमाल लिखा हुआ है, जो कि हम मानते हैं बहुत कम है, जो कुछ एक्सपीरियंस आने के बाद, कुछ कॉन्फिडेंस बनने के बाद डेफिनेटली इंक्रीज करा जाएगा. सो जब ये एक रिसोर्स है, इसको प्रोसेस करने के लिए इसकी एक कॉस्ट भी आएगी. रिसाइकलिंग प्लांट लग रहा है, उस प्लांट को चलने के लिए एक कॉस्टिंग भी चाहिए होगी. सो वो कॉस्टिंग यूएलबीज सारी की सारी नहीं दे सकते. सो जो सीएनडी वेस्ट जनरेट करेगा, वो ये उस उनकी ड्यूटी है दैट उनको ये कॉस्ट पे करना पड़ेगा. हेंस यूजर चार्जेस को लीगल एंड मैंडेटरी बनाया गया है सीएनडी वेस्ट रूल्स में. सो इन चार्जेस से क्या होगा, यूएलबीज आपसे वेस्ट कलेक्ट करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे और उसको प्लांट पे प्रोसेस करेंगे, एंड देन दे विल बी पुट अप फॉर सेल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सीएनडी वेस्ट रूल्स में है दैट सीएनडी वेस्ट रूल्स स्मॉल जनरेटर्स और बल्क जनरेटर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं. स्मॉल जनरेटर्स डे टू डे जनरेटर्स हो गए, बट बल्क जनरेटर्स वो हुए जो दिन में 20 टन से ऊपर या फिर एक प्रोजेक्ट में 300 टन से ऊपर वेस्ट जनरेट कर रहे हैं एक महीने में. सो अगर कोई इतना लेवल पे जनरेट कर रहा है, उनको बल्क जनरेटर बोल दिया जाएगा. एंड हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है दैट लार्जली हर शहर ने बल्क जनरेटर्स के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स सेट किए गए हैं. जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, दिल्ली में
स्मॉल जनरेटर्स अपने वार्ड लेवल पे दिया हुआ कलेक्शन पॉइंट पे जाके सीएनडी वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं, लेकिन बल्क जनरेटर को सीधा सीएनडी वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट पर जाकर ही वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट स्मॉल जनरेटर्स को नहीं पे करनी पड़ती, बल्क जनरेटर्स को वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है। इस तरह के कुछ डिफरेंसेस हमको शहरों में देखने के लिए मिले। सो इन रूल्स में और भी कई सारी बातें हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना समय नहीं है उन सबको बात करने के लिए, बट एक और इंटरेस्टिंग डेडलाइन ये रूल्स हमको देते हैं, जो कि है टाइम फ्रेम फॉर एस्टैब्लिशिंग अ रिसाइकलिंग प्लांट। यू विल नोटिस दैट हर शहर को एक रिसाइकलिंग प्लांट एस्टैब्लिश करने के लिए कहा गया है। मैक्सिमम 36 मंथ्स, छोटे से छोटे शहर को 3 साल का समय दिया गया है एक प्लांट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ये रूल्स आए थे 2016 में, बट आज हम 2025 में बैठे हैं। इतने सालों के बाद हमारे पास लगभग 32 या 33 ऑपरेशनल सीएनडी वेस्ट प्लांट्स हैं, लेकिन हमारे पास करीब इतने ही प्लांट्स इन प्रोसेस हैं जो कि किसी भी समय कमीशन करे जा सकते हैं। सो इवन दो पेस काफ़ी स्लो है, बट स्टिल वी वुड से कि काफ़ी प्रोग्रेस हमने इन सालों में अचीव किया है। देन और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? हमने बात कर ली है बल्क जनरेटर्स की, हमने बात कर ली है यूज़र फ़ी की, हमने क्राइटेरिया फॉर सेटिंग अप सीएनडी वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी की बात नहीं करी। उसके अकॉर्डिंग रूल्स बात करते हैं कि कम से कम 2000 टीपीडी तक का रिसाइकलिंग प्लांट एक शहर में सेटअप कर देना चाहिए, अगर एक सेंट्रलाइज्ड प्लांट की बात हो रही है। लेकिन धीरे धीरे इन सब सालों में हमने एक बदलाव देखा है। रूल्स में 2000 टीपीडी की बात हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि मोस्ट सिटीज छोटे छोटे प्लांट सेटअप कर रहे हैं। 300 टीपीडी, टीपीडी होता है टन्स पर डे, इसी से हम सीएनडी वेस्ट प्लांट की कैपेसिटी को कन्वे करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो 300 टीपीडी, 400 टीपीडी, 500 टीपीडी, इस तरह की कैपेसिटीज लार्जली हम डिफरेंट शहरों में देख रहे हैं। देन कलेक्शन पॉइंट्स, ये एक्सपीरियंस किया गया है हर डिफरेंट शहरों में कि कलेक्शन पॉइंट्स को बहुत दूर दूर ना रखा जाए। अगर कलेक्शन पॉइंट्स दूर दूर होते हैं तो जो जनरेटर्स होते हैं जैसे कि आप और हम, अ, उससे सीएनडी वेस्ट को डिपॉजिट करने में काफ़ी हेजिटेशन होती है। इंसान सोचने लगता है कि बहुत दूर है, मेरी कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन की, तो मैं इस हेडेक को क्यों लूँ। इससे बेटर है कि मैं एक लोकल ट्रैक्टर ट्रॉली वाला बुलाऊं, उनको हॉल करने की छोटी सी फ़ी दूँ, और वो जहाँ मर्जी फेंकाएँ, मेरी हेडेक ख़त्म हो जाएगी, मेरा साइट क्लियर हो जाएगा और मेरा कंस्ट्रक्शन आगे प्रोसीड कर सकता है। दिस इज़ व्हाट वी जनरली थिंक ऑफ। लेकिन इसी चीज़ को केटर करने के लिए रूल्स में लिखा गया है कि कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर की कवरेज होनी चाहिए एक कलेक्शन पॉइंट की। अगर इससे बियॉन्ड डिस्टेंस आता है तो एक और कलेक्शन पॉइंट देना चाहिए। अ, इस स्लाइड में मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके का काम सीएनडी वेस्ट पे सीएससी ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। आप देखेंगे कि हमने ऑन साइट 10 कंप्लायंसेस कुछ 20 से 30 शहरों में देखे हैं। हमने कई शहरों के लिए हाइपर लोकल एक्शन प्लान बनाए हैं। हाइपर लोकल एक्शन प्लान में बहुत डीप एनालिसिस होते हैं और हम लोकली पता लगाते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कर रहा है और उस एक्टिविटी को कैसे ठीक किया जाना चाहिए। देन हमने डस्ट कंट्रोल गाइडलाइंस भी लॉन्च करी हैं। मैं आपको लिंक्स शेयर कर दूंगी आफ्टर माय प्रेजेंटेशन, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगा कि कंस्ट्रक्शन साइट पे किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए। आई वॉज इन्फॉर्म दैट हमारे साथ बहुत सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड इंजीनियर्स भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, जो सीएनडी वेस्ट में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं। उनके लिए भी हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, क्लोजिंग द लूप फॉर सस्टेनेबिलिटी, दैट यू कैन सी हियर एट बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ योर स्क्रीन। इसमें यूएलबीज क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं फॉर अ गुड सीएनडी वेस्ट सिस्टम, ये चीज़ हमने मेंशन करी है। एंड रिसाइकलिंग प्लांट्स को लेकर क्या क्या बातें हमारे सामने आई हैं, वो आप ये हमारी पब्लिकेशन रबल रिकास्ट में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। सो
आप यहाँ देखेंगे कि ये कई सालों की रिसर्च है, जिस के अंडर हमने बहुत सारे शहरों में घूम-घूम कर एनालिसिस करे हैं। यू विल नोटिस दैट नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, ये थोड़ा पुराना मैप है। देयर आर मोर सिटीज़ नाउ दैट वी हैव एडेड एंड ये अगर आप फैक्ट शीट सर्च करेंगे सीएनडी वेस्ट की गूगल पर ही, तो यू विल रीच सीएससी का फैक्ट शीट्स वाला पेज, जिस पे आपको ये मैप दिखेगा और आप अपने मनपसंद शहर को जाके ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पे सीएनडी वेस्ट में क्या चल रहा है। इस एक्सपीरियंस ने हमको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, जैसे कि खाली प्लांट सेटअप कर देने से प्रॉपर सीएनडी वेस्ट नहीं मैनेज हो पाता है। खाली अ, खाली कलेक्शन सिस्टम ले आने से या खाली बायलॉज लॉन्च कर देने से सीएनडी वेस्ट प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो पाता है। आपको बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए साथ में काम करने के लिए, तो ही आप सक्सेसफुली सीएनडी वेस्ट को मैनेज कर पाएंगे, एक शहरी लेवल पे या फिर एक लोकली लेवल पे, एक कम्युनिटी लेवल पे। इसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम अप्रोच। जब तक ये इकोसिस्टम पूरी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं होता, सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट में कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। तो मैं क्या करूँगी, मैं जल्दी से आपको एक-एक कंपोनेंट और इसका एग्जांपल दूँगी फ्रॉम ऑल द सिटीज़ दैट वी हैव विजिटेड एंड इन्वेस्टिगेटेड अपॉन। सबसे पहला है डेटा एंड रिसर्च। हमारे कंट्री में प्रॉब्लम ये है दैट आज के डेट में किसी को भी नहीं पता कि कितना सीएनडी वेस्ट कंट्री में एग्जिस्ट करता है। पुराना सीएनडी वेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, एज वेल एज डेली नया सीएनडी वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है। तो हमने एक इसका तोड़ निकाला। रेरा नाम की एक चीज होती है, रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। हर स्टेट का अपना एक रेरा पेज होता है। अगर आप सर्च करेंगे फॉर एग्जांपल कर्नाटका रेरा, आपको कर्नाटका रेरा का पेज मिलेगा। उस पेज पे जाके ट्रैक योर प्रपोजल पे अगर आप जाएंगे, आप नोटिस करेंगे कि जितनी भी कंस्ट्रक्शन कर्नाटका में डिस्ट्रिक्ट वाइज हो रही है, वो सारी कंस्ट्रक्शंस वहाँ पे मैप्ड हैं। उन प्रोजेक्ट्स की लोकेशन है, उन प्रोजेक्ट्स का बिल्टअप एरिया है, उन प्रोजेक्ट्स के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स अपलोडेड हैं। क्यों? क्योंकि रेरा एक ट्रांसपेरेंसी टूल है जो कि गवर्नमेंट ने सीख किया था डेवलपर्स और बायर्स में ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए। तो हमने इस डेटाबेस को यूज़ करा है टू एस्टिमेट, सबसे पहला उस शहर में कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। अगर हम ये जान लेंगे कि कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसको उससे हमको समझ में आएगा कि कितना सीएनडी वेस्ट जनरेट हो रहा है, हम उससे एस्टिमेट कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने जब एस्टिमेशंस किए, हमने एक चीज़ पता लगाई कि शहरों में जो सीएनडी वेस्ट प्लांट्स आ रहे हैं वो एक्चुअली छोटी कैपेसिटी के आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल है वेस्ट बंगाल रेरा का। आप देखेंगे कि कैसे उनके पेज पर अम, हम अप्रूव प्रोजेक्ट्स देख पा रहे हैं और सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्टिंग आती चली जा रही है। एक और सोर्स निकल के आता है दैट इज परिवेश पोर्टल। ये ईआईए एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जाते हैं, वो सारे ईआईए पोर्टल पे रजिस्टर होते हैं। तो अगर आप ट्रैक योर प्रपोजल ड्रॉप डाउन में जाएंगे, एनवायरमेंट क्लियरेंस पे जाएंगे, आपको एक प्रोजेक्ट में एक फॉर्म 1A मिलेगा फिल्ड अप बाय द डेवलपर, जिसमें आप ये नीचे लास्ट में देखेंगे क्वांटिटी ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेशन लिखी गई है। तो डेवलपर्स को लिखना होता है अपने एनवायरमेंट क्लियरेंस वाले प्रपोजल में कि कितना सॉलिड वेस्ट वो कंस्ट्रक्शन पीरियड में जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने लिखा तो है बट ये नंबर बहुत ही गलत है, क्योंकि उनको पता नहीं कि कैसे सीएनडी वेस्ट एस्टिमेट करते हैं, तो उन्होंने कोई भी मनगढ़ंत नंबर लिखा हुआ है। हमने इस चीज़ पर भी रिसर्च करी थी और ये पाया कि ये नंबर्स कंप्लीटली अंडर एस्टिमेशन है। बट स्टिल ये एक सोर्स आगे जाके बन सकता है अच्छा, टू नो कि कितने प्रोजेक्ट्स उस सिटी में चल रहे हैं। दूसरा इकोसिस्टम का कंपोनेंट होता है अच्छा कलेक्शन सिस्टम। अगर अच्छा कलेक्शन सिस्टम मेरे शहर में नहीं है, तो मैं अच्छे से सीएनडी वेस्ट को मैनेज करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। हमने देखा है लार्जली 3 तरह के सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। पहला सिस्टम जो बिल्डिंग परमिशन के टाइम पर ही कलेक्शन रिक्वेस्ट ले लेता है। इसमें क्या होता है, वेस्ट जनरेटर बिल्डिंग परमिशन के लिए अप्लाई करता है, उसके वेस्ट उसके कंस्ट्रक्शन एरिया के बेसिस पे एक यूज़र फी चार्ज की कर ली जाती है। वो उस यूज़र फी को पे कर देता है, सीएनडी यूज़र फी को पे कर देता है, और जो पेमेंट का प्रोसेस है वो बिल्डिंग सैंक्शन सिस्टम में ही लिंक्ड होता है।
सो इस तरीके से पैसे यूएलबी के पास चले जाते हैं, और आप जब भी अपना मलबा डंप करते हैं यूएलबी आके उसको लेके चले जाते हैं। दूसरा सिस्टम होता है डेजिग्नेटेड कलेक्शन पॉइंट्स और डंपिंग पॉइंट्स। जैसा मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दिया था, दिल्ली में हर वार्ड में एक कलेक्शन पॉइंट दिया गया है। उस कलेक्शन पॉइंट पे जनरेटर अपने आप आके भी वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर सकता है, या फिर हेल्पलाइन को कॉल करके गाड़ी अपनी साइट पर बुला सकता है, और म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी आपकी साइट से वेस्ट उठाकर इस कलेक्शन पॉइंट पर ले जाएगी। और जब उस कलेक्शन पॉइंट पे काफ़ी वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, उस पॉइंट का इंचार्ज प्लांट ऑपरेटर को बुला के वो सारा वेस्ट उठवाकर प्लांट में भेज देते हैं। ये सिस्टम 2 है। हमने देखा है कि ज़्यादातर शहरों में सिस्टम 1 और सिस्टम 2 कॉम्बिनेशन में यूज़ करे जा रहे हैं। तीसरा सिस्टम हमारे पास एक और निकल के आया है, डोर टू डोर मॉडल, जिसमें कॉल किया जाता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपनी गाड़ी और अपना कलेक्शन मेंबर साइट पे भेजते हैं, साइट पे कलेक्शन होता है, पेमेंट्स होती है, एंड वेस्ट को कलेक्ट करके देन जहाँ पर भी ले जाना होता है वहाँ ले जाया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं, नोएडा, पुणे, पिंपरी चिंचवड। आई वुड से कि जो नए सिस्टम्स हैं वो इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग विद द कलेक्शन पॉइंट मेथड। एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ न्यू दिल्ली का, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल का ये एग्जाम्पल है। व्हाट दे हैव डन इज, उन्होंने स्किप लोडर्स, उन्होंने स्किप कंटेनर्स को जगह जगह अपने जुरिस्डिक्शन में प्लेस कर दिया है। ये कंटेनर्स आरएफआईडी टैग्ड हैं। अब इन स्किप में सब लोगों को गाइड किया गया है कि आप अपना सीएनडी वेस्ट लाके डिस्पोज ऑफ कर दीजिए। तो लोगों ने क्या करा है, इन स्किप्स में अपना सीएनडी वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं। जब ये भर जाता है, एक स्किप लोडर ट्रक आता है, इस भरे हुए स्किप को उठाता है, खाली स्किप को इसकी जगह पे रखता है, और भरे हुए स्किप को ट्रांसफर स्टेशन पे, जो कि अगेन इसी नेबरहुड में लोकेटेड है, वहां पे ले जाकर रख देता है। तो ये पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये एनडीएमसी के ट्रांसफर स्टेशन का पिक्चर है। इस सिस्टम से क्या होता है, बिकॉज सीएनडी वेस्ट एक मेटल कंटेनर में जा रहा है, स्पिलेज का इशू नहीं आता है, डस्ट का इशू नहीं आता है, क्योंकि ये रोड साइड पर नहीं पड़ा हुआ है, आते जाते व्हीकल्स डस्ट डिस्पर्स नहीं कर रहे हैं। एंड अगर आप केस स्टडीज अब्रॉड देखेंगे तो इसी तरह के स्किप कंटेनर्स और मेटल कंटेनर्स, कवर्ड कंटेनर्स कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी यूज करे जा रहे हैं। स्पेशली जब बड़ी कंस्ट्रक्शन होती है, उनके पास स्पेस होता है, वो इन कंटेनर्स में ही सेग्रीगेटेड सीएनडी वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करते हैं, जिसको बाद में आगे ले जाया जाता है। ये सिस्टम थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ये काफ़ी रोबस्ट और इफ़ेक्टिव है। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं गुरुग्राम का। गुरुग्राम में सिस्टम काफ़ी अच्छा था। अनफॉर्चुनेटली इट्स नॉट फंक्शनल एनी मोर बिकॉज ऑफ सम इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स। वेस्ट जनरेटर कॉल करेगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना एक ऑफिसर अलोंग विद एन एनफोर्समेंट एजेंसी जो कि कलेक्ट करते हैं उनको भेजेंगे साइट पर। तो एक असेसमेंट टीम आएगी, वो असेसमेंट टीम आपकी कंस्ट्रक्शन का स्क्वायर मीटरेज देखेंगे, कितना बिल्ट अप एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा है, और सीएनडी वेस्ट का असेसमेंट करेंगे। टाइफैक नाम की एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, टाइफैक ने थंब रूल दिया है कि हर नए कंस्ट्रक्शन में एक स्क्वायर एक स्क्वायर मीटर बनाने के लिए 50 किलोग्राम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वेस्ट जनरेट होता है। डिमोलिशन में लगभग 400 किलोग्राम ऑफ वेस्ट जनरेट होता है एक स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया को डिमोलिश करने में। तो ये थंब रूल्स टाइफैक ने दिए हैं। इन्हीं थंब रूल्स को यूज करके जो असेसमेंट टीम है गुरुग्राम की, वो असेस करती थी कि कितना वेस्ट इस साइट से निकल कर आएगा। उसी के बेसिस पे वो चार्जेस इम्प्लीमेंट करते थे। फॉर एग्जांपल, इन गुरुग्राम दे हैड सेपरेट चार्जेस फॉर सेग्रीगेटेड वेस्ट एंड अनसेग्रीगेटेड वेस्ट। अगर वेस्ट सेग्रीगेटेड मैनर में रखा गया है, जैसे कि रूल्स में लिखा है 4-5 स्ट्रीम्स में, कंक्रीट अलग, ब्रिक्स एंड मोर्टार अलग, टाइल स्टोन चिप्स अलग, वुड अलग, आयरन स्टील अलग,
इस तरीके से अगर ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में वेस्ट रखा गया है, द चार्जेस वुड बी ओनली 360 रुपीज पर टन। अगर ये मिक्स्ड वेस्ट है तो द चार्जेस वुड बी डबल, 720 रुपीज पर टन। इन्होंने ये इंसेंटिव्स रखे थे। अब आप सोचेंगे कि ये इतना बदलाव क्यों इन दोनों चार्जेस में। एक्चुअली होता क्या है, अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट आता है तो आपकी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी बड़ी क्लियर हो जाती है, प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सिंपल हो जाती है। सेग्रीगेटेड वेस्ट में आपको, अगर लेट्स से कंक्रीट ही कंक्रीट है, आपको उसको सिर्फ ड्राई क्रशिंग करनी पड़ेगी। दैट हैज़ अ लोअर कॉस्ट एज कंपेयर टू वेट क्रशिंग और वेट प्रोसेसिंग, जिसमें 2 से 3 स्टेप्स ऐड हो जाते हैं। और ये वेट प्रोसेसिंग हमको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है हमारे मोस्टली शहरों में, क्योंकि वेस्ट अनसेग्रीगेटेड आ रहा है। जब अनसेग्रीगेटेड वेस्ट आ रहा है उसमें बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे कंटामिनेंट्स होते हैं, जिसको हमें 2-3 एक्स्ट्रा स्टेप्स डाल के, वॉशिंग करके, केमिकल्स ऐड करके, उसको कंटामिनेंट्स को हटाना पड़ता है, सो दैट हमको कुछ अच्छी क्वालिटी का मटेरियल मिले। अब प्रोसेसेस एक्स्ट्रा हैं, इसका मतलब उसको रन करने की कॉस्ट भी एक्स्ट्रा है, उसको रन करने के रिसोर्सेज भी एक्स्ट्रा लगेंगे। सो वी आर अ लिटिल हेसिटेंट ऑन यूजिंग वेट प्रोसेसिंग अ लॉट, बिकॉज अगेन आपका फिर वो सस्टेनेबिलिटी वाला एंगल जेपरडाइज कर देता है। तो गुरुग्राम ने उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग चार्जेस रखे थे सेग्रीगेटेड और अनसेग्रीगेटेड वेस्ट के लिए। सो उनकी असेसमेंट टीम आती है, इस बेसिस पे चार्जेस कलेक्ट करती है, एंड देन वो चले जाते हैं। फिर जब एक्चुअल में वेस्ट जनरेट होता है, टीम आती है, वेस्ट कलेक्ट करती है, और जो उनके पेमेंट्स बनते हैं वो वाली स्लिप कलेक्ट करती है। और वो वाली, उस स्लिप के 3 कॉपीज होते हैं, एक यूएलबी के पास कॉपी जाती है, एक जनरेटर के पास रहती है, और एक प्लांट ऑपरेटर के पास आती है, और वेस्ट प्लांट पे पहुंचा दिया जाता है पेमेंट के बाद। सो ये कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। देन हम इकोसिस्टम के एक तीसरे एस्पेक्ट पर आते हैं, विच इज़ बायलॉज। रूल्स बोलते हैं, 2016 रूल्स बोलते हैं कि हर शहर को अपने सीएनडी वेस्ट डेडिकेटेड बायलॉज बनाने हैं और नोटिफाई करने हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि डिफरेंट सिटीज़ अलग अलग तरीके से इन बायलॉज को लेकर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोलकाता के सॉलिड वेस्ट बायलॉज में सीएनडी के 2 पॉइंट्स मेंशन्ड है, जिसमें पेनल्टीज ही लार्जली मेंशन्ड है। बट जयपुर हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब, जिसमें उन्होंने वेस्ट जनरेटर की सारी ड्यूटीज की बात करी है। बायलॉज में क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या, किस तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट करना है, कितने स्ट्रीम्स में करना है, किसको देना है, किस तरह के एनवायरमेंटल कंप्लायंसेस करने हैं, ये उन्होंने हर चीज़ उसमें मेंशन करी है। आप इसको इजीली सर्च कर सकते हैं, आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा, जयपुर के बायलॉज। देन हम आते हैं यूजर चार्जेस पे। यूजर चार्जेस हमने बात करी थी, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब हमको सीएनडी वेस्ट को वेस्ट की तरह नहीं देखना है, हमको उसे रिसोर्स की तरह देखना है। रिसोर्स की तरह देखेंगे तो उसकी प्रोसेस करने के लिए एक फ़ी डेफिनेटली हमको पे करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लांट्स अगर चलेंगे, उस रिसोर्स को लेकर आएंगे, तो उनको अपनी फिजिबिलिटी के लिए पैसा चाहिए ही। सो जयपुर में 390 रुपीज़ पर टन, दिल्ली में भी सिमिलर, कोलकाता में भी सिमिलर। आप देखेंगे कि ये फिक्स्ड कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हैं, जो कि सिंपली बेस्ड ऑन टनेज ऑफ वेस्ट है। पुणे एंड पिंपरी चिंचवाड़ हाउएवर हैव फॉलोड अ डिफरेंट रूट। उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट तो थोड़ी कम रखी है, बट उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे ज़्यादा जोर दिया है, बिकॉज यू सी सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा खर्चा जो हमने देखा है वो उसके ट्रांसपोर्टेशन पर ही आता है। तो पुणे एंड पिंपरी चिंचवाड़ ने ट्रांसपोर्टेशन वाले एंगल को अलग करके इसको थोड़ा सा और डायनामिक बनाया है। गुरुग्राम की बात हमने कर ली, दैट हाउ दे आर इंसेंटिवाइजिंग सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्शन। भुवनेश्वर में मॉडल ये है कि वो व्हीकल ट्रिप के ऊपर चार्जेस दिखा रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ। कितना ही टन वो वेस्ट कैरी करे, कम करे, ज़्यादा करे, अगर उनका एक ट्रैक्टर ट्रिप या ट्रक ट्रिप लग रहा है, उसकी बेसिस पे वो चार्जेस ले रहे हैं। प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज की भी हमने काफ़ी हद तक बात कर ली, दैट देर इज़ अ ड्राई प्रोसेसिंग विच इज़ मेनली फॉर सेग्रीगेटेड वेस्ट, concrete और stone, and there's a wet processing facility
जो कि मिक्स्ड वेस्ट के लिए होता है। वेट प्रोसेसिंग में 2 या 3 स्टेप ऐड हो जाते हैं, जिसमें वॉशिंग होती है, कंटेमिनेंट रिमूवल होता है, एक वाटर ट्रीटमेंट होता है जिसमें अगेन केमिकल डाल के लाइट कंटेमिनेंट्स को सेपरेट किया जाता है, और इसमें हमें मिलता है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट कॉल्ड एम सैंड, मैन्युफैक्चर्ड सैंड, और रोबो सैंड। आई डोंट नो आपके शहर में उसको क्या बोलते होंगे, बट इसके कई नाम हैं। इट्स बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जो कि नेचुरल रिवर सैंड नहीं है, बट हैज़ वेरी सिमिलर प्रॉपर्टीज लाइक रिवर सैंड। सो लेट मी टेल यू, मैन्युफैक्चर्ड सैंड एक ऐसा प्रोडक्ट है, रिसाइकल प्रोडक्ट, जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, कंसिडरिंग सैंड माइनिंग, सैंड लिफ्टिंग बहुत सारे स्टेट्स में बैन कर दी गई है। ड्राई प्रोसेसिंग सिंपली क्रशिंग होती है, डिफरेंट साइजेस के एग्रीगेट्स बनाए जाते हैं और यूज़ करे जाते हैं। हम धीरे धीरे एक सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल से डिसेंट्रलाइज प्रोसेसिंग मॉडल पे आना चाह रहे हैं। वाई? बिकॉज हमने देखा है सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग पे जब बहुत भर भर के वेस्ट आता है, सो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्पेस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेंदी ट्रांसपोर्ट ट्रिप्स, बहुत दूर दूर से वेस्ट लाना पड़ेगा। इसका मतलब वो सारे शहर में अगर डस्ट नॉर्म्स उसने ठीक से फॉलो नहीं करे, सारे शहर में वो धूल उड़ाता हुआ लेकर आएगा और आके और उतने ही फॉसिल फ्यूल्स बर्न करेगा और आकर इस प्लांट पे डिपॉजिट करेगा। सो इंस्टेड ऑफ दिस, एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच जैसे कि हैदराबाद ने करी है। हैदराबाद के पास ऑलरेडी 500 टन्स पर डे प्रोसेसिंग कैपेसिटी के 2 प्लांट्स हैं, और वो उतनी ही कैपेसिटी के 500 टन्स पर डे कैपेसिटी के 2 प्लांट्स और लेकर आ रहे हैं। सो टोटल 4 प्लांट्स ऑफ 500 टन्स पर डे कैपेसिटी ईच हैदराबाद में प्लान है, बिकॉज दे रियलाइज इट्स अ बिग सिटी। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में काफ़ी ट्रैफिक, काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी फ्यूल बर्न होगा, जिससे कि प्लांट की कॉस्टिंग खराब हो सकती है। यूएलबी के लिए भी चार्जेस बढ़ जाएंगे, जनरेटर्स के लिए चार्जिंग बढ़ जाएंगे। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉलो किया है। सिमिलरली हम इनकरेज कर रहे हैं ये फोटो, इन फोटोज से मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि आज के डेट में हमारे देश में कई तरह के क्रशर्स अवेलेबल हैं, जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर भी इजीली आ जाते हैं। हम डेवलपर्स को भी सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके लेट्स से एक एरिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो क्लस्टर अप्रोच में एक छोटे रीजन में, एक छोटे जोन में एक छोटा क्रशर रखे, लोकली डिसेंट्रलाइज मैनर में सीएनडी वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। आप में से कई लोगों को पता होगा, दिल्ली में काफ़ी मैसिव रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली में किदवई नगर प्रोजेक्ट है, जिसमें पुराने गवर्नमेंट फ्लैट्स विच वर ओनली 2 स्टोरी फ्लैट्स को बहुत प्राइम लैंड पे तोड़ के उसको कॉम्पैक्ट मिक्स्ड यूज्ड डेवलपमेंट में कन्वर्ट करा जा रहा है। सो टू डू दैट, इसका मतलब बहुत सारी डिमोलिशन होनी थी। एनबीसीसी ये प्रोजेक्ट कर रहा है, उन्होंने काफ़ी सारी डिमोलिशन करी और उन्होंने इन सीटू प्रोसेसिंग को इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने सारी डिमोलिशन करा हुआ वेस्ट को साइट में ही यूज़ करा, सेग्रीगेट करा, और उन्होंने इस वेस्ट को प्लांट पर ना बेच के इन सीटू ही प्रोसेस करा। सो ये क्रॉलर जॉ क्रशर है, क्रॉलर स्क्रीन्स हैं। ये डिफरेंट स्क्रीन्स मीन्स यू कैन सेपरेट द पार्टिकल। 40 mm का डिफरेंट स्क्रीन पे, 60 mm का पार्टिकल डिफरेंट स्क्रीन पे, 100 mm का पार्टिकल डिफरेंट स्क्रीन पे। नीचे उतने साइज की जाली लगती है, बड़ा पार्टिकल ऊपर रह जाता है, उससे छोटा पार्टिकल नीचे आ जाता है, और उस साइजिंग के हिसाब से आप इन पार्टिकल्स को डिफरेंट सीव लगा के सेपरेट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। देन दिस इज अ मोबाइल क्रशर, जिसमें व्हील्स लगे हैं और ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाके भी क्रशिंग कर सकता है। नीचे वाली इमेज में आप देख रहे हैं एक कॉम्बो प्लांट है, जिसमें एक्चुअली वेट प्रोसेसिंग हो रही है। मैं इसी की बात करी थी कि इस बहुत बड़े टैंक में बहुत फाइन सैंड जैसा पार्टिकल लाया जाता है, उसमें केमिकल ऐड किया जाता है, उसको फ्लॉक्यूलेशन किया जाता है, मीन्स उसको रगड़ा जाता है, और लाइट कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया जाता है। तो हमको फिर वहाँ से मिलता है मैन्युफैक्चर्ड सैंड, जिसको हम काफ़ी पॉपुलरली अपने कंस्ट्रक्शन में आजकल यूज़ कर रहे हैं। देन आप देखेंगे ये छोटा सा क्यूट सा मोबाइल क्रशर है, ये भी हमारे कंट्री में आ चुके हैं, जो कि छोटे प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं।
और भी कई तरह के क्रशर्स आते हैं। आप ये सारे इक्विपमेंट की जानकारी एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है CND वेस्ट रेडी रेकनर बाय BMTPC। BMTPC एक संस्था है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी प्रमोशन एंड मटेरियल काउंसिल। ये एक मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर एक संस्था आती है जो मटेरियल्स पे ही रिसर्च करते हैं और उसी के ऊपर नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कुछ मशीन्स हैं जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल में देख रहे हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग मशीन। दिल्ली में हम लोगों को लेकर आते हैं एक्सपोजर विजिट में, हम उनको दिखाते हैं कैसे CND वेस्ट से डिफरेंट साइज ऑफ एग्रीगेट बन रहे हैं, कोर्स एंड फाइन। थोड़ा सा सीमेंट मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है। उस मिक्सचर को फिर हम जब इस मशीन में डालते हैं तो एक बड़ा सुंदर सा कंक्रीट ब्लॉक बन के निकलता है। टाइल्स एंड पेवर ब्लॉक्स आर समथिंग which are also popularly made at CND waste recycling plants and also used by a lot of agencies, especially urban local bodies. देन बहुत सारे डस्ट के ऑन साइट कंप्लायंसेस हैं। अगर हम रिसाइकलिंग प्लांट की बात करें, मुझे नहीं पता कि कितने लोग हैं जो रिसाइकलिंग प्लांट में डस्ट कंप्लायंसेस के लिए इंटरेस्टेड होंगे, बट इस तरह के ऑन साइट डस्ट कंप्लायंसेस एक हमारी रिपोर्ट में काफ़ी अच्छे से डिटेल आउट करे गए हैं। जैसे कि विंड बैरियर लगाना, विंड बैरियर की हाइट कितनी होनी चाहिए, आपके मटेरियल स्टॉक पाइल्स को 3 तरफ से कवर करना। आई थिंक मेरे पास वो वाली स्लाइड अवेलेबल होगी। एंड कोई एक्टिविटी जैसे कि क्रशिंग एक्टिविटी साइट पर चल रही है तो उस समय किस तरह के नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए। बिल्डिंग में लेट्स से एक हाई राइज बिल्डिंग है, 10th फ्लोर पे काम चल रहा है, सो क्या पूरी बिल्डिंग को ग्रीन कवर में ढकने की ज़रूरत होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सवाल हमारे पास काफ़ी आता है। अगर किसी एक पर्टिकुलर फ्लोर पे एक्टिव कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको उसी फ्लोर पे डस्ट बैरियर्स डालने की ज़रूरत है और वाटर स्प्रिंकलिंग करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट देर इज़ अ कॉस्ट इम्प्लीकेशन when we uh, when we do dust compliance practices. सो इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं जो हमने विद डायग्राम्स एक्सप्लेन कर रखे हैं हमारे रिपोर्ट में। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं व्हील वॉशिंग फैसिलिटी, ट्रक्स आते हैं साइट में और जब बाहर जाते हैं बहुत सारी डस्ट बाहर लेकर जाते हैं और पूरी सिटी में डिस्पर्स करते हैं। तो आपको अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे इंश्योर करना है कि पानी या तो पानी गिराया हुआ हो ताकि वो व्हील वॉश हो जाए एज द ट्रक विल पास थ्रू। ट्रक्स हैव टू मेंटेन अ सर्टेन स्पीड, 20 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड उनको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं तो मिट्टी उड़ेगी। एक व्हील शेकर रैक होता है जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। ग्रिजलीज होते हैं जिसमें क्या होता है, ट्रक को हिलाया जाता है थोड़ा सा जिससे मिट्टी झड़ के नीचे गिर जाती है। लाइक दिस देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज जो आज की डेट में यूज करी जा रही हैं। सबसे आसान होता है एप्लीकेशन ऑफ वाटर डस्ट सेपरेशन। आपको लगेगा कि इतने छोटे से मेजर से क्या डस्ट रुकेगी, बट हमने कैलकुलेट किया 3 तरह के डस्ट कंट्रोल मेजर्स सच एज अनपेव्ड रोड्स को मैनेज करना, पेविंग कर देना और पानी का सप्रेशन डालना। देन मटेरियल हैंडलिंग ठीक से करना, इस तरीके से स्टॉक पाइल्स को ढक देना, 3 तरफ से उनको बैरियर कर देना और नीचे भी एक लाइनिंग डालना विच इज ऑल्सो इम्पर्मिएबल मटीरियल के, एंड कटिंग ग्राइंडिंग एक्टिविटीज को एक कवर्ड एरिया में करना। सो अगर हम मटेरियल्स को इस तरीके से हैंडल करते हैं एंड अगर हम साइट पे विंड बैरियर्स इंस्टॉल कर लेते हैं, सो 3 तरह के मेजर्स, पेविंग ऑफ रोड्स, प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ विंड बैरियर्स could actually lead to 93% reduction in emissions फ्रॉम ऑल कंस्ट्रक्शन साइट्स। ये एग्जाम्पल हमारा बेस्ड ऑन जयपुर है, हमने जयपुर के लिए रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे ये कैलकुलेशन किया था। 93% PM10 पार्टिकल को कम किया जा सकता है। सो दीज नंबर्स आर अमेजिंग। हमको लगता है कि बहुत छोटा सा एक्शन है और हमें ऐसा क्यों करे। इसी तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे साइट लेवल मेजर्स हैं, कैसे आप पेड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डस्ट डिस्पर्स ना हो। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि डस्ट डिस्पर्सल ना हो। बैरियर्स कितना ऊंचा होना चाहिए और स्टॉक पाइल्स
उन बैरियर से कितनी दूरी पर होना चाहिए, इस तरह के बहुत सारे मेजर्स हमने डस्ट कंट्रोल के लिए अब इसमें डाले हुए हैं। ये प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी, और इसके बियॉन्ड भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है इन आर रिपोर्ट्स। आई अनफॉर्चुनेटली डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम। व्हीकल्स को कैसे कवर करना है, टाइटली सिक्योर करना है विद अ टारपोलिन शीट, एंड उसके ऊपर पानी भी थोड़ा सा डालना है ताकि लूज पार्टिकल उड़ के ना गिरे। ओवरलोडिंग नहीं करनी है, और अगर जीपीएस एनेबल्ड व्हीकल्स हो दैट्स बेटर। कुछ कॉस्टिंग है, आई डोंट नो हाउ यूजफुल दिस वुड बी, बट कॉस्टिंग्स मोबाइल प्लांट के लिए और फिक्स्ड प्लांट के लिए, जीपीएस एनेबलमेंट ऑफ व्हीकल्स के लिए, एक ग्रीन बैरियर लगाने के लिए किस किस तरीके का खर्चा आ सकता है, ये हमने इसमें रखा है आपके कंसिडरेशन के लिए। पेनल्टीज, फाइन्स, एनफोर्समेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। पेनल्टीज, फाइन एंड एनफोर्समेंट इकोसिस्टम का एक बहुत क्रूशियल पैरामीटर है। अगर किसी शहर में पेनल्टीज नहीं होंगी तो प्रॉपर सीनरी वेस्ट मैनेजमेंट भी नहीं होगा। देन अपटेक ऑफ रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, कई बार क्या होता है, रिसाइकलिंग हो जाती है प्रोडक्ट्स की बट उसको खरीदने कोई नहीं आता है। उस केस में सरकारें क्या कर रही हैं, वो एक ऑर्डर निकाल रहे हैं कि जैसे ये आप देखेंगे दिल्ली ने 2 to 10% यूज ऑफ रिसाइकल्ड सीएनडी वेस्ट अलाउ मैंडेटरी किया है, कि हर सरकारी प्रोजेक्ट में 2 और 10% रिसाइकल्ड सीएनडी वेस्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। चंडीगढ़ ने बड़ा अच्छा इनोवेटिव मॉडल लेकर आए हैं। सो जब जो आपने फी पे करी है कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, बिल्डिंग परमिशन के टाइम पे, उस फी का अप टू 50% कॉस्ट का मटेरियल आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिसाइकलिंग प्लांट से उठा सकते हैं। एंड अगर आपने ये मटेरियल नहीं उठाया है और देन यूर आस्क्ड कि आपने रिसाइकिल मटेरियल इंस्पेक्शन के टाइम पे अगर आपसे पूछा जाए कि आपने रिसाइकिल मटेरियल क्यों यूज़ नहीं करा है, आप कहते हैं कि प्लांट वाले के पास नहीं था, तो ये एक्सक्यूज भी नहीं चलेगा, बिकॉज द गवर्नमेंट चंडीगढ़ कॉरपोरेशन इज आस्किंग फॉर अ नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, कि अगर प्लांट वाले के पास मटेरियल नहीं है तो उसने आपको नॉन अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया होगा, वो दिखाइए। सो इस तरीके से वो इंश्योर कर रहे हैं दैट यूजर्स, जनरेटर्स यूज रिसाइकल प्रोडक्ट्स। ज़्यादातर हमको ये लगता है कि ये महंगे होते हैं रिसाइकल प्रोडक्ट्स, बट आप देखेंगे इस कॉस्टिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब वर्क करता है तो एक्चुअली रिसाइकल प्रोडक्ट्स सस्ते निकल कर आते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट से। पब्लिक अवेयरनेस एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इकोसिस्टम का। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनको क्या करना है सीएनडी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो कैसे करेंगे। इसके लिए भी चंडीगढ़ का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने एक वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ रखी हैं, प्लस बहुत सारा फर्नीचर रखा है, जैसे कि पिकनिक टेबल्स, बेंचेस, प्लेटफॉर्म्स, प्ले एरियाज, ये जैसे आप स्नेक एंड लैडर्स वाला गेम देख रहे हैं, ये उन्होंने सीएनडी वेस्ट से ही बनाया है, जिसमें बच्चों को स्कूल पिकनिक पे लाया जाता है और सिखाया जाता है कि सीएनडी वेस्ट क्या होता है और कैसे उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे सॉलिड स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। सो ये एक एफर्ट है जो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एंड दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड। ये समरी है बेसिकली, क्या क्या हम शहरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उनको करनी चाहिए। एंड मैं रिपीट नहीं करूँगी इनको, यू कैन टेक अ लुक एट दीज एट लेजर। बेसिकली दिस इज एवरीथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। आपके मन में कुछ शेयर करने के लिए हो, एग्जाम्पल या फिर लेट्स से कोई सवाल हो, प्लीज फील फ्री टू ब्रिंग इट अप। Natasha, would you help me getting these questions? Yes, yes. Thanks so much, Mitashi. That was an extremely elaborate and in-depth, but I mean, extremely informative, uh, presentation. Thank you so much. We actually, I have quite a few questions, but we do have a question. So on the three models of collection, are we right to understand ki, matlab the eligibility of which model one can take up is based on the size of the construction? Is that correct? No, not really. See, Okay. model one is something that is already existing. This is also a traditional model. You will notice that most cities have this present, even before the CND waste rules came in.
तो एक चीज होती है मलबा फी। मलबा फी हम यूजुअली पे करते हैं वेन एवर वी आर सीकिंग बिल्डिंग परमिशन। मोस्ट ऑफ आवर सिटीज एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया दे हैव इट। So after the rules came in, they modified this Malba fee only, and उसी को वो C&D waste processing fee बोल के then charge कर रहे थे. So there is no size restriction in this case. Got it, got it. So I mean, it's a little bit of an overarching question, I think, but I mean, clearly we have the technology and we have the guidelines and, we have also the understanding, it seems, from various aspects of what this sector requires and what it needs to have a more sustainable pathway, right? My question really is that from the experience that you guys have had, especially working with urban local bodies, uh, is the level of understanding of the guidelines and the technology up to a certain mark amongst the urban local bodies that you have dealt with? And of course, this is a little bit of a contentious question, but I'm just wondering, is the level of understanding sort of there in the agencies that are sort of responsible in taking forward or putting in place these guidelines? See, there is understanding. Yes, that's correct. ULBs are see they're educated people. उनको सब पता होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गाइडलाइंस हैं. They also know what will work in the city and what will not. They're very clear on that. And they're also very cautious कि किस चीज़ को आगे पुट अप करना चाहिए, किस चीज़ को आगे पुट अप नहीं करना चाहिए. For example, something as simple as user fee. People are not used to paying user fee for solid waste management. हमने नहीं पे करा है पैसा. हम किसी प्राइवेट पार्टी को दे देंगे, स्वीपर को पैसा दे देंगे एवरी मंथ 100 रुपीज 200 रुपीज एंड विल बी हैप्पी. लेकिन हम यूएलबी को इतना पैसा नहीं देंगे. So ULBs are very hesitant on a lot of aspects, even when they know it's very crucial. So I would say understanding पूरी है, but confidence की बहुत कमी है. And इसका solution awareness ही है. That there's a need to make people aware that अगर आप यहाँ पैसा ना दे के यहाँ पैसा देंगे तो शायद आपका वेस्ट प्रॉपरली मैनेज होगा, जिसके बहुत इल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे. ये बात हमको लोगों को ही कन्वे करनी होगी एंड थ्रू यूएलबीज ही करनी होगी. उन्हीं को थोड़ा चार्ज लेना पड़ेगा. देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी ऑन दिस, यस, बट I would say this is a mixed, scenario. There are also ULBs who lack capacity on these aspects. जिनको नहीं पता कि exactly क्या करना है. Mostly we have observed very pressured ULBs who are expected to take action on, these aspects. They have money, they have a lot of money. NCAP में काफी पैसा आया है, स्वच्छ भारत मिशन में काफी पैसा आया है, 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर काफी पैसा आया है. मनी है, बट उनको पता नहीं कि कैसे खर्च करना है. सो पता नहीं, और जहाँ पे खर्च करना है वहाँ पे हेजिटेशन है. सो ये दोनों बातें मिलके यूएलबीज को बहुत ज्यादा इनएक्शन की तरफ लेके जाते हैं. दिस इज मेनली व्हाट इज ट्रबलिंग आवर सिटीज. And in terms of the understanding of all of these guidelines, especially maybe probably technology, not so much, but uh, what about what's your experience been in working with the construction, as in the companies and the who are the businesses that are responsible at that stage as well? Is there resistance? Is there acceptance? Does it vary from city to city? I'm assuming the latter is most true, but what's that like as well? And just one, I mean, there is another question, but also in terms of the uptake of the recycled material. I mean, from what we are sort of understanding from the cities that we work in, the uptake is really sort of a huge hurdle that local establishments are not being able to cross. तो वो मतलब ये एक तो reasoning, मतलब what is the problem with
the uptake? Why is it slower than most? And also, how do we improve it if there is anything that can be done? Right. I'll take this question first about uptake. Uptake का problem ये है that you see two problems largely. One is the quality of the CND waste coming in as feed. अगर खराब quality of CND waste आ रहा है, I'll give you one example. This happened, I think, in Gurugram. Poor guys, they were saying कि हमारे waste में 70% तो sand आता है जब भी सीएनडी वेस्ट आता है, क्योंकि गुरुग्राम में बहुत ज़्यादा इलीगल डंपिंग होता है। इलीगल डंपिंग होता है रोड साइड पे या किसी वेकेंट लैंड पे, तो वो सारा उठा के ले आते हैं। तो जब वो वे करके उसको डंप करते हैं, उसमें से 70-80% सैंड निकल जाता है। तो जब 70-80% सैंड निकल गया, जितना मटेरियल बच गया, उस मटेरियल को वो क्या प्रोसेस करेंगे एंड क्या ही प्रोडक्ट वहाँ से निकल के आएगा। जब इन्फीरियर क्वालिटी फीड आती है, दे हैव टू ऐड मोर वैल्यू to get quality product out of it. Means they have to add more cement. The moment they do that, cost rises. So bad quality, high cost and no takers. एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है जस्ट लैक ऑफ नॉलेज। लोगों का बस ये मानना है कि जो बढ़िया क्वालिटी रिवर सैंड देती है वो शायद एम सैंड मुझे नहीं देगी। So this conception is there very much, and governments by mandating their own departments like municipal bodies, development agencies, जैसे दिल्ली में DMRC है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, PWD, NHAI, ये उनको फोर्स करके कि आप ये यूज करो CND वेस्ट मटेरियल और डेमोन्स्ट्रेट करो टू द कम्युनिटी, टू द लार्जर सोसाइटी कि ये अच्छे होते हैं, बिकॉज वी नीड दैट। लोगों में अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ के लिए। सो विच इज़ वाई एजेंसीज लाइक CPWD, वन लैंडमार्क एग्जाम्पल इज सुप्रीम कोर्ट का एक एनेक्सी बिल्डिंग बना है दिल्ली में फ्यू ईयर्स बैक। दे एंड दैट बिल्डिंग इज मेड अप इंटायरली ऑफ रिसाइकल्ड CND वेस्ट ब्लॉक्स। सो कंक्रीट ब्लॉक्स उन्होंने रिसाइकल्ड कंक्रीट ब्लॉक्स ही उसमें इस्तेमाल करे हैं। वी यूज टू टेक पीपल देयर टू शो देम कि देखो इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हाईली सिक्योर्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग इज मेड ऑफ दिस मटेरियल, तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। सो दिस इज अवेयरनेस। देन थर्ड इज सम states you know have more taxes on this product. So कुछ मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल्स GST एग्जेम्प्ट होते हैं, बट व्हाट प्लांट ऑपरेटर्स हैव टोल्ड अस दैट कुछ उनके मटेरियल्स GST चार्जेबल होते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। उनका ये रिक्वेस्ट रहता है गवर्नमेंट से कि आप इसको GST एग्जेम्प्ट कर दो, 18% की बजाय आप इसको 5% कर दोगे तो हम ले लेंगे। डेवलपर्स ये बोलते हैं। सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स हमारे पास निकल के आ रहे हैं, लार्जली अवेयरनेस एंड कॉस्टिंग, which further is connected to a lot of other issues. And your other question was about Companies and businesses that companies and businesses. See, this is also a mixed thing. So कहीं पर बहुत positive है, कहीं पर developers have found a business case in this. I'll give you one example. Pune का CND waste plant is actually run by a private developer. So that company, I forget the name, but that company has a lot of projects in Pune. तो उन्होंने क्या करा, उनके पास ज़मीन भी थी, तो उन्होंने अपना एक प्लांट सेटअप कर लिया। दे डिड अ टाई अप विद पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो उनका रनिंग कैपेसिटी एक्चुअली 1000 TPD का है, बट दे हैव आउटसोर्स, दे हैव रिजर्व्ड ओनली 200 और 250 TPD कैपेसिटी फॉर PMC। बाकी वो सारा मटेरियल लेकर आते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और खुद ही अपने प्रोजेक्ट्स में वो वाला मटेरियल यूज़ करते हैं। तो जहाँ डेवलपर्स को समझ में आ गया, बिजनेस केस मिल गया, वहाँ पे तो वो बहुत ही प्रो रिसाइकलिंग प्लांट है। बट जहाँ पे इनको बिजनेस केस नहीं मिला, जहाँ पे उनकी लाइबिलिटी ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे वो लोग रेजिस्ट करते हैं। And this is CND way. Speaking of dust control practices, developers are very clear on what their role is. क्योंकि जब environment clearance उनको मिलता है, consent to operate या consent to establish उनको चाहिए होता है,
they have to show that they're following all these measures, क्योंकि अब तो ये लॉ में आ गए हैं, ये एक एक्ट बन गया है. Environment Protection Rules 2018 is very much there, and developers know that they have to do this. Otherwise, they will be answerable to either NGT or the Supreme Court. तो उनको पता है they are doing this. Problem lies with the small generators. उनके पास अवेयरनेस कम होता है थोड़ा सा, उनको थोड़ा टाइटन अप करने की जरूरत होती है, बिकॉज दिस हैज अ कॉस्ट repercussion. They need to have those tarpaulin covers, they need to have those wet suppressants, dust covers चाहिए होते हैं. तो वो थोड़ा सा हेजिटेंट होते हैं, बट वहाँ पे दिस इज वेयर द यूएलबीज हैव टू कम इन एंड सपोर्ट देम, एंड कैपेसिटी बिल्ड करने की ज़रूरत है, और उनको बताने की ज़रूरत है कि इसमें इतना बड़ा खर्चा नहीं आएगा अगर आप ठीक से करोगे तो. पेनल्टी वुड बी इवन मोर एक्सपेंसिव, और थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके कर लेंगे तो ठीक रहेगा. सो द पिक्चर इज लाइक दिस. We are well over time, but one last question from one of our listeners. So essentially, what they're asking is, I think, and it takes from what you just last said, smaller establishments and especially individual builders, I am assuming, those are the most as in decentralized, and so so even the listener is sort of wondering, what are the sort of processes that one has to actually be aware of? And I mean, from a point of view of citizen engagement, what can the urban local body actually do? Or even CSOs like all of us, what do we have in our sort of kitty to actually support the urban local body to increase awareness amongst all of us, I guess. Yeah. See, mandate carries a 12-point or a 13-point checklist. This checklist needs to be promoted. Big developers know about this, but small generators don't know about this. ये तो करना ही है, कोई और चारा नहीं है. So this checklist, it needs to be converted into a very user-friendly guidebook, जिसमें pictures हों, जिसमें बताया जाए कि कैसे आपको ये सारे processes carry out करने हैं on your site. So in native languages, English में हम लोगों ने किया है. I'll share that link with you. You can share with the listeners. हमने कोशिश करी है इन गाइडलाइंस को ट्रांसलेट करने की इन अ वेरी सिंपल यूजर फ्रेंडली मीडियम, बट इसको अब यूएलबीज को थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है इन द नेटिव लैंग्वेज, सो दैट एवरीबडी इज अवेयर कि अच्छा उनकी ये ड्यूटीज है, उनको ये करना ही पड़ेगा. दूसरा, समटाइम्स स्मॉल प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, स्पेस का बहुत कंस्ट्रेंट आता है कि बिल्डिंग लाइन के अंदर तो काम चल रहा है, तो कहाँ पे हम सीएनडी वेस्ट को स्टोर करेंगे, मटेरियल्स को कहाँ पे स्टोर करेंगे. सो उस केसेस में लोकली सम स्पेस हैज टू बी वर्कड आउट. ये कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट प्लान में चीजें हैं जो आनी चाहिए. This is where the generators have to work in tandem with the urban local body or CSOs to identify some spot locally that can be used as a common storage point for, let's say, some 5-6 projects that are happening in that neighborhood. So ये करने की जरूरत है because building level पे शायद ही ना हो पाए achieve. So एक ये मॉडल निकल के आया है एज अ सोल्यूशन सो फार. आई डोंट नो हाउ सक्सेसफुल इट विल बी, बट अभी तक सोल्यूशन यही है फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, that you find some space for storage of materials and management for storage of C&D waste. Inform the ULB about it. Follow dust control practices on it. And जो local जितनी भी construction चल रही हैं वो उस space को access कर सकते हैं और use कर सकते हैं. Mumbai is doing this. Mumbai is a very space crunch city. उनके पास कलेक्शन पॉइंट्स के लिए ही जगह नहीं है. तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने हर वार्ड में या अपने किसी एक एरिया में, छोटे एरिया में वेकेंट लैंड्स आइडेंटिफाई करे हैं. वो वेकेंट लैंड को पब्लिश करते हैं कि ये खाली लैंड है, इस लैंड को हम लोग नोटिफाई कर रहे हैं एज अ कलेक्शन पॉइंट फॉर दिस डेट अंटिल दिस डेट. तो टेम्पोरेरी कलेक्शन पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट आया हुआ है मुंबई में. तो वो वहाँ पे स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हैं फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, और जैसी उसकी रिक्वायरमेंट लोकली खत्म हो जाती है दे मूव ऑन टू अ सेपरेट प्लॉट ऑफ लैंड. तो ये मॉडल भी आया हुआ है. वी हैव नॉट इन्वेस्टिगेटेड डीपली इनटू इट कि कितना सक्सेसफुल है, बट दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग. ये लोकल कम्युनिटी लेवल इनोवेशन है दैट वी आर गेटिंग टू सी, एंड वी वांट टू सी मोर ऑफ एग्जांपल्स लाइक दिस.
Thanks so much, Mitashi. I mean, there are a couple of more questions, but we don't, honestly, don't have the time. But yeah, I think essentially the groups that are here present, I think this is I mean, first of all, a huge learning curve for us. But um, to leave us on a positive note, the fact is that, there are tangible solutions. Like the Jaipur example was mind blowing. The fact that, just those three simple things can reduce PM10 by that extent. There are tangible solutions. There are case studies that are proving that it's all working. So on it, I mean, clearly it's just a matter of bridging those information gaps and actually ensuring that things on ground happen. But thank you again so much for being our speaker in the last minute. We will stay in touch with you to get all the resources that you mentioned, if that's okay. And hopefully we can have more such sessions with you soon. Thank you. Thank you so much, Natasha. Thank you, everybody, for listening. And we will be happy to share all the resources for your help. Thank you. Bye bye.